Good evening, everyone. Welcome to Zoom session, Dada's BFR Zoom session, which we conduct every Sunday. And today, again, we have a very interesting topic. So it is like about emotional coaching to kids. लेकिन ये सिर्फ kids की बात नहीं है. This has to come from parents. And today we have a very good speaker, Dr. Sara Lakhani from RHMC College, Rajkot. And of course, Dada तो हैं ही. So welcome Dada, welcome Dr. Sara, and I will just invite Sara to actually start the session. Sara. Yes. Okay. Firstly, thank you, ma'am. Thank you, Ritu, ma'am, and Dada, for giving me an opportunity to speak before all the doctors, our homeo experts, and veg flower therapists. Thank you, ma'am. So, our today's topic is an emotional coaching in kids. Though I do not have much knowledge and expertise in the today's topic, but still, under the guidance of Dr. Ritu ma'am and Dada, I will try my best to say few words about this topic. Okay, so first of all, why we need to talk about this topic? Because unlike adults, the children cannot express their feelings by words. For that, we need to understand their emotions, their feelings, their expressions, their reactions, everything. Yes, this is the very crucial part of their life because here we are going to make a first impact on the personality that they are going to have as an adult. At the different stages of development, the child reacts in the different ways. As we all know, the child cannot yet see, but though they can understand and they can hear the voices from the beginning of the intrauterine life. And that is the most important and the first reason Sara, why the child likes. सारा एक बार मैं म्यूट कर रही हूँ सबको, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिएगा क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत आवाजें आ रही हैं. Okay, so as we all know, the child cannot see from the intrauterine life, but yes, they can hear the voices. And that is the only reason why they like the mother's voice very much, because that is the most known voice to them. As said by Professor Pinton, the child can learn to recognize and copy each and every facial expression of their mother since the very age of 8 to 11 months. That span of the life, that 8 to 11 months, are very important for the physical and emotional growth of a child because that is the only time when the brain, mind, intellect, and understanding power of the child starts developing. Since birth, child puts their whole energy to understand each and every voice, each word that they listen, and each sight that crosses from before their eyes. Realizing the likes, dislikes, and qualities of your child is the very key sources for a good parenting. Now, there are very few aspects that are to be considered in order to understand the emotion of childs. First of the all, that is, become their best friends. Understand them, observe them, spend the quality time with them, discover the reasons why your child is doing a particular behavior. The key source for the proper physical, mental, emotional, and social growth of a child are love and affection from the parents. Now, as we know, we are having very short time. I will like to end my words here. And thank you, ma'am. Please give us insight on the further topic. Thank you, Sara. Thank you so much. This was very good, Dr. बहुत अच्छा बोले सारा. बहुत अच्छा. Thank you. Very good insight. That was wonderful. And you have made my work easier so that I can carry forward from here. So before we go to Dada, because Dada,
has to end everything with backflower, which is our base, which is our actual base, because kids and parents, while parenting, we do not need any homeopath or any allopath, but we need backflower just to understand all the negative emotions which tally between parents and between kids. So these are very hard time for children and even for parents. I would say that there has been a massive change in the nature of childhood that we have experienced, or even a decade before, compared to this generation's nature of childhood that they are experiencing. And it is not only tough on parents, it is tough on them also, on the kids, regarding the peer pressure, and even today's, they have been so much, so much exposed to social media. सो इट इज वेरी एप्टली सेड कि अगर बच्चे शेर हैं तो माता पिता को सवा शेर होना बहुत जरूरी है. They have to be a step ahead. They have to be smarter, and especially where in fields of emotional and social skills. Now, there has been a massive deterioration in this field of emotional and social skills. There has been a massive deterioration. चाहे हम उसको बोलें कि deterioration has come in form of mood, their loneliness, they are more sulky, and they are more impulsive, or they are more disobedient, they are more nervous, or they are more irritable. कई बार होता है पेरेंट्स अपने चुप हो जाओ, हमने तुम्हें कहा ना बहस मत करो, बट वी डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड व्हेन दे वांट टू स्पीक, वी आर नॉट देयर. And now when they revolt, we have just one sentence: do not disobey, do not become a disobedient child. But it doesn't work like this. So the question arises ki what are the factors and forces of this kind of a deterioration in emotional skills and social skills. हमें क्यों अपने बच्चों को बोलना पड़ता है, वो कमरे में बैठे होते हैं, कोई गेस्ट आ जाते हैं कि बेटा आओ इनसे मिलो. Unlike our times, we were very open. कोई गेस्ट आते थे तो we were all very enthusiastic, सब एक दूसरे से मिलते हैं. न तो आजकल के जमाने में बहुत हम एक दूसरे के घर जाते हैं, न हमारे बच्चे मिलते हैं. कोई आ भी जाता है तो बच्चे अपने कमरे में होते हैं, हमको बुलाना पड़ता है. उसके पीछे रीजन भी हम ही हैं. सो वी फर्स्ट नीड टू एक्सेप्ट कि हमारी कहाँ फॉल्ट आती है. सो आई विल नॉट से एंटायरली इट इज पेरेंट्स फॉल्ट. ये कह सकते हो कि इट इज वेरी डिफिकल्ट इमोशनल रियलिटी, या बोल सकते हैं साथ में. लेट्स स्टार्ट विथ इकोनॉमी फर्स्ट. It's a very difficult economic reality these days. Both the parents have to work hard, and I agree कि दोनों को work hard करना ही पड़ता है to sustain that economy, to sustain कि बच्चे को raise करना है और बहुत अच्छे स्कूल में भेजना है. Right from eating good stuff, organic stuff, to sending kids to good school, to their good decent clothes. It has become so costly affair, right from एक छोटी सी चीज से लेके सुई से लेके बड़ी चीज. It has become so difficult. अब दोनों पेरेंट्स वर्क नहीं करते हैं तो it's not a decent life anymore. And this is one reason they go for one single child. I will not say that they are selfish, because economic reality is so difficult. But at the same time, yes, one child, alone child is, I do not prefer this. जो भी पेरेंट्स होते हैं कि नहीं हमें एक ही बच्चा चाहिए, आई ऑलवेज से आप लोग कितने भाई बहन हैं. क्योंकि इफ आई कंसिडर हमारी जनरेशन और अ डिकेड आफ्टर माय जनरेशन, वी ऑल वर 2 or 3. सो व्हेन दे से कि हाँ हम 2 हैं, तो एटलीस्ट व्हाट हैपेंस कि नाउ सिंस पेरेंट्स हैव लेस टाइम टू स्पेंड विद देयर किड्स, and at the same time अपने काम के लिए they have to go away from their relatives, we can say parents, they have to go to other other places, other cities. Now parents do not want to send their kids to street to play because they do not know. एक तो हम जैसे दादा हमेशा बोलते हैं सबसे बड़ा दुख है कि फ्लैट सिस्टम्स हो गए. So they do not want their kids, क्योंकि वो बिजी हैं, अकेले बच्चे को कैसे भेजें. And they do not want send it to the neighbors also, because neighbors are also facing the same thing. They are also working hard, even they are very busy. तो अब क्या होता है, the children, they are spending more time in front of TV, in front of computer. And unfortunately, there is so much on the social media, Instagram. Every child has got Instagram. आप सिर्फ scroll करो, आपको इतनी सारी information होती which confuses a child. So they are basically they are sitting in front of, so उनके पास physical exercise नहीं है.
they are having less interaction with other people and they are having less interaction with other kids, क्योंकि नीचे खेलने नहीं जाते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, जितने भी हमारे पास फैक्टर्स हैं, पेरेंट्स बोलो, दादा दादी, नाना नानी, रिलेटिव्स बोलो, या नेबर्स बोलो, या जो भी बच्चे रफ अप्स एंड डाउन होते हैं दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए बोलो, दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इमोशनल एंड सोशल स्किल्स। और ये अब सारी चीजें नहीं है, क्योंकि कैसा होता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप बैठे हैं बच्चों के बाद बोलो बेटा क्या है, नॉट नेसेसरीली दे आर इन मूड। अर्जेंटली कभी भी बच्चे को आपकी जरूरत पड़ सकती है और वो कहता है मम्मी पापा मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, यू नो, बाय जस्ट बाय फ्लूक बोल सकते हैं, या जस्ट बाय नेचर बोल सकते हैं, या बिना सोचे समझे कई बार हम लोग बोलते हैं बेटा 2 मिनट मेरा फोन चल रहा है, या बेटा 2 मिनट मेरी एक रोटी बननी बाकी है। बच्चे को जरूरत आपसे उसी वक्त की है, तो अगर आप उस वक्त अवेलेबल नहीं है, यू आर सेंडिंग रॉन्ग सिग्नल टू। वो रोटी बंद हो सकती है, एक रोटी खराब होगी, या आप अपने फोन पे बॉस को बोल सकते हैं जस्ट 2 मिनट व्हाट आई कॉल यू बैक, देयर इज अ चाइल्ड, माय चाइल्ड नीड्स मी एट दिस मोमेंट। लेकिन वो जो 2 मिनट चला जाता है ना, ही इज कंफ्यूज। वो किससे इंटरेक्ट करता है, जब बच्चे अकेले होते हैं ना, माँ बाप दोनों काम पे जाते हैं, सोशल लाइक सोशल मीडिया पे होता है या टीवी पे होता है, या दे कॉल टू देयर फ्रेंड्स, क्या कर रहा है तू, मैं ये गेम खेल रहा हूँ, मैं भी ये गेम खेल रहा हूँ। एंड जब उनको लगता है ना मम्मी पापा भी नहीं सुन रहे, उनके पास टाइम नहीं है, तो जस्ट सबकॉन्शियसली दे कॉल देयर फ्रेंड, दे शेयर। अब शेयर किससे करे, उसी बच्चे से कर रहे जो वो भी कंफ्यूज्ड है। सो यू अंडरस्टैंड, यू आर थ्रोइंग योर चाइल्ड इनटू एरे ऑफ कंफ्यूजन्स। और ये जो कंफ्यूजन होता है, ओके लेट्स डिस्टिंग्विश, इफ अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एंजाइटी एंड हंगर। कई बार कैसा होता है ना, बहुत भूखे होते हैं ना हम, तो वी बिकम एंशियस कि क्या खाएं, हमें कुछ सूझता नहीं है, हमें कुछ पता नहीं चलता है कि हमें करना क्या है, भूख से हमारा ये सब बंद हो जाता है, राइट। तो उस वक्त क्या होता है, एंजाइटी बढ़ जाती है भूख के मारे, या जो चीज मिलती है, द किड्स फॉल इनटू ईटिंग डिसऑर्डर, दैट इज इमोशनल डिसऑर्डर। तो जो भी चीज होती है वो बच्चे को, और हर चीज के अंदर शुगर होता है और सॉल्ट होता है और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एंड एक बात को वो आपको पेट भर देते हैं, लेकिन वो जो बोलते हैं ना कि मन भरा भरता नहीं है, और वो हैबिट पड़ जाती है ईटिंग डिसऑर्डर की। जब हमको कोई चीज बच्चे को समझ में नहीं आती, बच्चा अनाप शनाप खाना चालू कर देता है। सो इन द सेम मैनर, व्हेन दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन इम्पल्सिवनेस, बिटवीन देयर लोनलीनेस, दे फॉल इनटू सम काइंड ऑफ वायलेंस। वायलेंस की डिग्री मत पूछिए, कुछ भी हो सकती है, बट ऑफकोर्स दे फॉल इनटू वायलेंस। वायलेंस कैन बी रेजिंग योर वॉइस, या चीजें फेंकना, बच्चे के हाथ में जो चीज होती है वो फेंक देता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है, देयर इज अ कंफ्यूजन, उसको किसी और ने गाइड किया है इंस्टेड ऑफ पेरेंट्स। सो हियर आई ऑलवेज ले एम्फेसिस on the emotional bond between parents and children. There is an importance of talking, there is an importance of empathy, there is an importance of validating your children's feeling when they are emotional. It is much more important than that your phone call, या बस आपका काम फिनिश होना चाहिए किचन का, मैं मेरा सारा काम निपटा दूं और मैं छूट जाऊं। But it's a bilateral affair, right? How and when, in what manner you sow, you reap those results only. So when parents, they offer children their empathy, they offer children the guidance to understand their negative feelings, चाहे वो anger हो, चाहे वो sadness हो, चाहे वो loneliness हो, what they are doing, they are building bridges of love and affection, of loyalty. So here I would say कि कई बार क्या होता है, then इस अगर आप ये सब चीजें दे रहे हो तो कभी बच्चा मिसबिहेव कर देता है, दैट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक टू मी राइट नाउ। सो बच्चा वो मिसबिहेव करेगा ही नहीं, यहाँ ठीक है कभी कभी गुस्से में हम भी ऊपर नीचे बोल देते, बट इफ देयर इज लॉयल्टी, देयर इज अफेक्शन, यू हैव बिल्ट दैट ब्रिज। सो I will just say misbehavior is not a major concern over here. What is major concern? Compliance. Like what? To do something right even when somebody is not watching you. वो बच्चा सीख जाता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कंप्लायंस, ओबीडियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट कम्स ओनली फ्रॉम लव एंड कनेक्टेडनेस चिल्ड्रन एंड बिटवीन पेरेंट्स। सो इससे नहीं होगा, ये सिर्फ लव एंड ओबीडियंस, ये लव एंड कनेक्टेडनेस से होगा, नॉट फ्रॉम बुलिंग, नॉट फ्रॉम इमोशनल ड्रामा फ्रॉम पेरेंट्स साइड, या नॉट फ्रॉम टेलिंग देम कि ये करना चाहिए तुम बेकार में ड्रामा कर रहे हो। नो, ये सारी चीजें वर्क नहीं होती, ये सारी चीजों से आप बच्चों को अपने से दूर कर रहे हैं। So here in short I will tell you we have 5 emotional
ये कह सकते हैं कोचिंग स्टेप्स, and this has been this has been stepped up by Dr. John Gottman. He says that पहला step होता है become aware. जो भी अनम्यूट है, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। प्लीज प्लीज आप अपने फोन को अनम्यूट कीजिए, हमारी लिंक ब्रेक म्यूट हो रही कीजिएगा, है। यस म्यूट कीजिएगा प्लीज, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। राइट, आई हैव म्यूट। ओके मैडम। Yes, Dada. So we have all those 5 steps by Dr. John Gottman. So पहला स्टेप डॉक्टर जॉन कहते हैं कि बी अवेयर ऑफ योर चाइल्ड इमोशन। अगर आप उसके चाइल्ड के इमोशन से अवेयर हो जाते हैं तो सेकंड स्टेप आता है कि आपको मालूम है अवेयर हो गए हैं, यू कैन रिकॉग्नाइज इट। नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट इंटीमेट। अगर आप हो गए तो बैठिए। अगर आपका बच्चा शांति से कहीं बैठा चुपचाप टीवी देख रहा है, या बैठा हुआ कोई भी ऐसे बिना बात के बैठा हुआ है, आपको समझना पड़ेगा कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। वो ये मत सोचिए कि वो चुपचाप टीवी देख रहा है मैं उसको देखने दूं, नहीं, कुछ ना कुछ जरूर बात है। तो अगर अवेयर हो गए, रिकॉग्नाइज हो गए, दिस इज द टाइम टू बी इंटीमेट। सारा काम बंद कीजिए, बच्चे के पास आइए, ट्राई टू टॉक टू द चाइल्ड। थर्ड स्टेप होता है कि लिसन टू देम। अब आप आए हो, बैठे हो, इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे हो बच्चे के पास, सो लिसन टू देम। लिसन टू देम विदाउट जजिंग, लिसन टू देम विदाउट स्पीकिंग, लेट देम वैलिडेट देयर फीलिंग्स। आप अपना ज्ञान मत बांटो, सिर्फ सुनो बच्चे को। अब जब आप बच्चे को सुनने लग रहे हो तो बच्चा सेफ फील करता है। नाउ द फोर्थ स्टेप कम्स कि अब उसका थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन, उसकी थोड़ी घबराहट बंद हुई है कि हाँ मम्मी इज देयर। सो नाउ यू आस्क द चाइल्ड टू फाइंड वर्ड्स टू लेबल देयर इमोशंस। आप ये मत बोलो बच्चे को बेटा आपको घबराहट हो रही है, आप गुस्से में हो, आप उसको फिर कंफ्यूज कर रहे हो। सो यू आर नॉट सपोज टू स्पीक एट ऑल, सिर्फ सुनो, फिर उसको बोलो हो क्या रहा है। बच्चा आपको अपने आप बताएगा मेरे को गुस्सा आ रहा है, या मेरे को इरिटेशन हो रही है, या उसने मेरे को ऐसा कहा, तो उसको बोलने दो। लेट देम वॉइस देयर इमोशंस, कि क्या फीलिंग आ रही है उसको लेबल करने दो, वर्ड्स निकालने दो। नाउ यू आर ऑन एन अपर हैंड। अगेन आई एम सेइंग, जो कि मैंने फर्स्ट थिंग कही थी कि अगर बच्चा शेर है तो आपको सवा शेर होना पड़ेगा। यू हैव टू बी फास्टर इन थिंकिंग, यू हैव टू बी लिटिल स्मार्टर। यहाँ आप स्मार्ट हुए हो, बच्चे को आपने पूरा टाइम बोलने दिया। आप जिस टाइम पे उसको जरूरत है, चाहे वो बोले या नहीं बोले, यू आर देट, यू आर प्रेजेंट देयर। सो नाउ यू हैव अ अपर हैंड, बिकॉज बच्चा समझ गया कि हाँ मम्मी इज देयर, वो कॉन्फिडेंस आ गया है बच्चे को। सो द फिफ्थ स्टेप इज नाउ यू कैन सेट द लिमिट। एट द सेम टाइम आप स्ट्रेटेजी भी प्लान कर सकते हो बच्चे के साथ, व्हाट टू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट हैंड। उसी वक्त यू कैन एक्सप्लोर ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज, चाहे बच्चे से पूछे कुछ, और साथ में अपनी लिमिट भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा टाइम बच्चों के हाँ चलो अपन ऐसा करते, तुम्हें ऐसा चाहिए ऐसा करते। आई रिमेम्बर वेरी वेल, मेरी बेटी छोटी थी तो एवरी मंडे उसको छुट्टी लेनी होती थी। संडे के बाद उसका मंडे को उठने का बिल्कुल मन नहीं करता था, और मेरे लिए इतना टास्क डिफिकल्ट होता था कि स्कूल में मंडे को इतनी सारी पढ़ाई, अबे घर आने के बाद मैं घर की पढ़ाई करेगी, वो स्कूल की पढ़ाई करेगी, वो बच्ची फ्री कब होएगी, और उसको ये मंडे फिर कभी पसंद नहीं आएगा लाइफ में। मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था। तो फाइनली माय मॉम इज अ साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, तो मैंने एक ही चीज की। मंडे वॉज अ टास्क फॉर मी, तो मैं 10 मिनट पहले उठती थी। 10 मिनट पहले उठती थी, मुझे मालूम था ये 10 मिनट मुझे बेटी के साथ चाहिए। वो उठते से ही रोना चालू करती थी, मुझे स्कूल नहीं जाना, ये नहीं जाना, वो नहीं जाना। फिर हम बैठते थे, थोड़ी देर बात करते थे। फिर आई यूज टू प्रॉमिस हर कि आज जब तुम आओगी ना, तो तुम स्कूल से आओगी तो तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब स्कूल से पढ़ के आ गई हो, और स्कूल नहीं जाओगी तो हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर हम खेलने कैसे जाएंगे नीचे। तो वो एक उसको चीज दे देती थी कि हमको नीचे खेलने जाना है अगर तुम स्कूल चली जाओगी तो। आई वुड प्रॉमिस दैट, और वो हंसते मुस्कुराते या जैसे भी हो फिर भी वो स्कूल चली जाती थी। पर पूरा दिन उसको दिमाग में रहता था आज तो मम्मी मेरे साथ खेलने जाएगी नीचे, एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिलाएंगे, आइसक्रीम जैसी चीज, विच आई वुड प्रॉमिस। तो अब मेरे पास भी ये है कि मुझे सारा काम खत्म करना है मेरी बेटी के फ्री होने से पहले, और उसको भी ये रहता था। सो दीज आर द स्ट्रेटेजीज। तो आपका भी काम निकल गया, उस बच्चे के लिए भी एक हैप्पी नोशन हो गया। सो यू हैव टू प्लान स्ट्रेटेजीज, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू सेट द लिमिट्स ऑल्सो, कि भाई ये करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। सो यू अंडरस्टैंड, दीज आर ऑल वेरी बेसिक फाइव्स जो हम आसानी से कर सकते हैं। हमने सिर्फ इसको नेम किया है बिकॉज डॉक्टर जॉन गॉटमैन सेड कि ऑफकोर्स आप इसमें से एक भी छोड़ेंगे तो काम तो बन जाएगा पर मजा नहीं आएगा। सो रिमेंबर ऑल दीज 5 स्टेप्स। सो ऑफकोर्स इन द एंड आई वुड से गुड पेरेंट्स डू नॉट रिक्वायर इंटेलेक्ट,
दे रिक्वायर इमोशंस. ज्यादा होशियार बोलते हैं ना, ज्यादा पढ़ाकू या ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है पेरेंट्स को. थोड़ा सा इमोशनल, यू शुड हैव दैट इंटीमेसी विथ योर किड्स. इमोशनल होना जरूरी है, बिकॉज फैमिली लाइफ इज द फर्स्ट स्कूल फॉर इमोशनल कोचिंग. यहाँ पे अगर आपने इमोशनल कोचिंग कर ली, योर किड्स इज सोशली स्मार्ट, योर किड knows how to handle their emotions. Of course, they will always have your backing, but they will be little stronger. So the family life is the first teaching, is the first school for any emotional coaching of the child. So here I say, जब पेरेंट्स इमोशनल कोचेस बन जाते हैं, यू नो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कोच. दे हैव टू प्लान अ स्ट्रेटेजी. गेम के अंदर कोच का क्या काम होता है? स्ट्रेटेजी प्लान आउट करना. तो उसी तरीके से अगर पेरेंट्स बिकम गुड सोशल एंड गुड, लाइक आई से इमोशनल कोचेस, सो दे कैन, they can very well strategize their ups and downs of their children's life. They can tell them कि what is अपने को इस तरीके से करना चाहिए, अगर ऐसी सिचुएशन तो ऐसा करना चाहिए. यू आर सपोज टू मेक योर चिल्ड्रन इमोशनली स्ट्रांग. बच्चे पढ़ाई में अपने आप ही स्मार्ट हो जाते हैं. 19-20 का फर्क होता है. कोई फर्स्ट आए जरूरी नहीं है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. वो फर्स्ट वाला बच्चा अगर इमोशनली वेरी वीक है, सो वेयर आर यू एज अ पेरेंट? आपके दिमाग में हमेशा स्ट्रेस रहेगा कि ये कोई स्टेप नहीं उठा ले, ये कोई वायलेंस में नहीं पड़ जाए, ये कोई गंदी हैबिट्स में नहीं पड़ जाए. सो फॉर every parent, what is important, you have to be present in your child's life, especially when they need you. Emotional child, a strong child. जो भी बच्चा स्ट्रांग होगा, इसका मतलब है वो इमोशनली वेरी स्ट्रांग है. एंड दोज किड्स आर जनरली वेरी स्मार्ट. सो बी प्रेजेंट फॉर योर किड्स व्हेन दे नीड यू. सारे काम साइड में आ सकते हैं. स्पेशली आई ऑलवेज से कि इफ यू आर लाइक, बच्चे स्कूल से आते हैं, मेरे को कई बार मेरी फ्रेंड्स और कई बार कई लोग बोलते थे कि तुम अपने बच्चे को हाथ से क्यों खिलाती हो, इतने बड़े बच्चे हो गए हैं. बट मुझे हमेशा से लगता था कि वो टेबल पे बैठ के अगर खाना खा रहे हैं तो टीवी ऑन हो जाएगा. माइट एज वेल अगर मैं मेरे हाथ से खिलाऊंगी तो वी विल हैव कॉन्वर्सेशन कि स्कूल में क्या हुआ. दिस इज द टाइम व्हेन दे से कि स्कूल में अच्छा भी हुआ होगा, अगर बुरा भी हुआ होगा, दे विल शेयर. एंड व्हेन दे आर शेयरिंग, यू आर ऑल्सो सिटिंग फ्री. यू कैन ऑलवेज प्लान स्ट्रेटेजीज कि अगर ऐसा हो रहा है ना तो अपन ऐसा कर सकते हैं, अपन ऐसा कर सकते हैं. इन्वॉल्व योरसेल्फ विद द किड्स. Yes, of course, I will not take much time, but this was part 1 for emotional coaching in kids. And yes, we have some wonderful insights on how BFR can help. Here to Dada. Dada? थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम. Yes, Dada. बहुत हार्ड सब्जेक्ट दिया है. आज तक मैं अपने इमोशंस को नहीं समझ सका, और आपने बच्चों का इमोशंस समझाना बता दिया मुझे. वो वेरी तो हार्ड. जब वो कोई दादा आप ही के चिल्ड्रंस, पेशेंट्स हैं बहुत सारे, इसलिए आप ही ने बोला था ये लेने के लिए. हाँ, बट जब कोई डॉक्टर चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट बनना चाहता है ना, तो मेडिकल लाइन में 2 इयर्स लग जाते हैं. तो आधे आधे घंटे के 2 टास्क में हम कितना बता सकेंगे. एग्जैक्टली. बट पूरी कोशिश हम करेंगे कि कुछ न कुछ तो समझ में आ जाए. रही बात बच्चों की, तो बच्चे क्या होता है? बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे. बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे. ये वो नन्हे से फूल है जो रब को, ऊपर वाले भगवान को, ऊपर वाले अल्लाह को भी प्यारे लगते हैं. ये बच्चे हैं. और बच्चे के इमोशंस को समझना, एक माँ जिस तरह से बच्चे को इमोशंस को समझ सकती है ना, और कोई नहीं समझ सकता. 1 सेकंड में वो समझ जाती है कि मेरे बच्चे को क्या हुआ है. सबसे ज्यादा हार्ड क्या है? 1 दिन से लेके 1.5 साल के बच्चे को समझना. कुछ बोल नहीं पाता, अभी उसको स्माइल करना आता नहीं है, बट एक माँ समझ जाती है कि इसको क्या हो रहा है. मेडिकल लाइन में या होम्योपैथी में बताते हैं ना कि जब आपका बच्चा रो रहा है और ये हाथ उठा के कान के पास ले जा रहा है, तो समझ लो उसके कानों में दर्द है. वो बता रहा है आपको कि उसके कान में कुछ गड़बड़ है. इमोशन. अब क्या है, जब हम छोटे थे, स्ट्रीट में खेला करते थे, मिट्टी में खेला करते थे, क्रिकेट खेला, कबड्डी खेली, उतू टूटू खेला, ये गेम खेली, वो गेम खेली, थोड़ी सी अपनी ही मिट्टी मुंह में चली गई. अब तो ऐसा कुछ है नहीं.
पूरी स्ट्रीट के 10-15 बच्चे इकट्ठे होके खेलते थे, हंसी मजाक करते थे, झगड़ा भी करते थे, मारपीट भी करते थे। अब रहना कहाँ पे हो गया? फ्लैट में, चार दीवारी के अंदर बंद। तो बच्ची के पास एक्टिविटी क्या रहेगी? कुछ नहीं सिवा मोबाइल। आप देखना, आपका बच्चा छोटा है, आपको 2 घंटे कहीं बाहर जाना है, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दो, ले ये तू मोबाइल रख, मैं अभी आती हूँ। अब बच्चे को मोम की जरूरत नहीं है, वो मोबाइल लेके बैठ जाएगा। क्या देखेगा? वो बच्चों के जो आता है गेम, स्टोरी वगैरह। अब क्या करता है वो? अपने आप से आपको वो स्टोरी में फिट कर देता है, समझ लेता है कि मैं ये हूँ। दूसरी बात, आपने देखा होगा, जो भी मेरी तरह ग्रैंडफादर हो चुके हैं, कि जब बच्चा 1 से 3 साल का होता है ना, बड़े उत्साह के साथ हमारे साथ बातें करता है, तोतली भाषा में बोलता रहता है, आज मैंने ये किया, मैं वहां गया था, ये हुआ था, हुआ। अचानक से वो आहिस्ता आहिस्ता से कम कर देता है सब कुछ, बोलना बताना। क्यों? हमारा इंटरेस्ट उसमें कम हो गया है। आप उसके साथ इंटरेस्ट बनाए रखो, उसको पूछो आज क्या क्या हुआ, क्या करा किया। आज फ्रेंडशिप डे है, मेरा छोटा ग्रैंडसन 7 इयर्स का है, तो सुबह उसके साथ झगड़ा कर लिया मैंने कि भाई तू सबको ये बेल्ट देने के लिए, फ्रेंडशिप बेल्ट देने के लिए लाया है, मेरा बेल्ट बेल्ट कहाँ है? दोपहर को जब मैं खाना खाऊंगा, खाना आऊं, तो मुझे मेरा बेल्ट चाहिए। तो अब क्या हो गया? मैं वो बच्चे का क्या बन गया? फ्रेंड बन गया। तो जो बातें वो बच्चा अपने माँ बाप के साथ खुल के नहीं करेगा, वो मेरे साथ करता रहेगा। दादा ये क्या है, दादा वो क्या है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। ये उसकी जिज्ञासा है, उसको सेटिस्फाइड करते रहो आप, समझाते रहो। सबसे बड़ी बात जो हम सभी माँ बाप करते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, हम उसको समझाते हैं, व्हाट इज दिस, ये बाल है, हेयर है, ये क्या है, आईज है, ये क्या है, नोज है, टीथ है, ईयर है, हैंड है, पाम है, फिंगर्स है, लेग्स है, स्टमक है। बट नहीं बताते तो एक चीज नहीं बताते हम कि ये क्या है। और बच्चा ये सोचता रहता है कि मेरी मोम ने ये सब तो मुझे सिखा दिया, बट जो मेरा पार्ट, ये पार्ट है ना, वो पार्ट क्या चीज है ये तो नहीं बताया। शर्म छोड़ो, उसको बता दो ये पार्ट क्या है, इसका यूज क्या है। अगर बच्चे के मन में ये जिज्ञासा है और आपने उसको नहीं समझाया, वो बाहर से वो इंफॉर्मेशन ले लेता है, और वो इंफॉर्मेशन गलत होती है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ दादा। ठीक है, हम धार्मिक है, मान मर्यादा वाला है, वो सब ठीक है, बट जहाँ जरूरत पड़े वहां बच्चे की, अपने बेटे की या अपनी बेटी की फ्रेंड बन जाओ, उसको आराम से समझाओ कौन सा पाठ क्या है, कब उसको जरूरत होती है। अब वो पुराना जमाना नहीं है। रही बात इमोशंस, तो इमोशंस और सिम्टम्स दोनों को समझना पड़ेगा। छोटे बच्चा जब रोता है तो उसकी माँ समझ जाती है कि इसको दर्द हुआ है, या तो इसको भूख लगी है, या तो वो अपने पास मुझे नहीं देख रहा इसीलिए रो रहा है। ये माँ से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। अपनी बेच फ्लावर में जो 38 रेमेडीज है ना, शायद मैंने बेच फ्लावर बुक पार्ट 2 में बच्चे और बेच फ्लावर दिया था कि कौन से बच्चे का क्या इमोशंस हो सकता है, क्या सिम्टम्स हो सकता है। पार्ट 3 अगर में भी। कोई बच्चा, हम्म। हाँ, अगर कोई बच्चा समझो एग्रीमोनी है, तो आप उसको कैसे पहचानोगे? वो सदा हंसता रहेगा। अगर वो कहीं गिर गया है ना और छिल गया, ब्लड निकल रहा है, तो वो हंसता हुआ कह रहा था, मम्मी मम्मी देखो 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 मैं गिर गया, मुझे ब्लड निकल रहा है, कुछ इधर लगा दो ना।
ये एक रिमोनी बच्चा है। तो ऐसे होम्योपैथी में 38 की 38 रेमेडी बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगर आगे टाइम मिला तो हम 38 रेमेडीज के बच्चे देखेंगे कि कौन सी रेमेडी का बच्चा कैसा होता है। हाँ बट दादा, वो एक पार्ट लास्ट 3 में अपन बताएंगे, नेक्स्ट टाइम वाले में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम वाले में। वो सारी हाँ रेमेडीज कवर कर रहे हैं। हाँ, बट बच्चे के इमोशंस अगर कोई सबसे ज्यादा समझता है तो वो एक माँ है। मैं यहाँ पापा को इग्नोर नहीं करूंगा। वो भी फटाफट पहन के अपना बच्चे की सब ख्वाहिशें पूरी करने पे लगा ही है। बट जब इमोशंस की बात आती है तो मॉम ही वो समझ सकती है, क्योंकि 9 महीने से वो समझ रही है क्या है, बच्चा पेट में लात क्यों मारता है। वो फिक्स फिक्स टाइम होता है। आप देखना, किसी भी प्रेग्नेंट है उसको पूछ लो तो उसका फिक्स टाइम होता है। जैसे ही लात लगी वो समझ जाती है कि इतने बजे है अभी। अंदर तो कोई घड़ी नहीं है, वॉच नहीं है, बट तभी से इमोशन स्टार्ट हो जाते हैं। मैं हर प्रेग्नेंट को बोलता हूँ कि डेली आप अपने स्टमक पे हाथ घुमाओ, पूछो कि मेरा बच्चा तो कैसा है। ये आपको बहुत फायदा करता है। अब आप क्या कर रहे हो, आज के द्वारा अपने बच्चे को इमोशंस दे रहे हो कि मैं तेरी अभी से केयर करती हूँ। ठीक है। और Yes. तो ज्यादा क्या बोलूंगा, अभी शायद टाइम भी नहीं बचा है। हाँ, शायद 5 मिनट है। देखिए किसी नहीं का सर, क्वेश्चन है दादा, कोई। 2 2 मिनट है, बट हाँ ये सपोज जो बोलते हैं ना, हमारे कल्चर में बोला जाता है ना कि जब लड़की प्रेग्नेंट होती है, औरत प्रेग्नेंट होती है, तो उसको बोला जाता है अच्छा सोचो, हमेशा खुश रहो, और भगवान का नाम लो, या जो भी है सब अच्छे से करो, जो भी है खुश रहना जरूरी है, बिकॉज यू आर ट्रांसफरिंग योर इमोशंस टू योर किड। अगर वो बच्चा अगर खुश पैदा होता है, एग्जैक्टली वो अपनी माँ के इमोशंस लेके पैदा होता है, जिसे हम लोग लैंग्वेज में कहते हैं मदर वूंड्स, चाहे वो खुश के हों या चाहे वो ना खुश के हों। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट, आपका जो बिहेवियर पैटर्न, आपके जो इमोशंस रहते हैं, वो आपके अनबॉर्न चाइल्ड के अंदर जा रहे हैं। वो बच्चे वो इमोशंस लेके पैदा हो रहे हैं। सो इट इज योर utmost रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर राइट फ्रॉम द डे यू आर प्रेग्नेंट, कि मेरे को किस तरीके से बिहेव करना है। किड्स आर वॉचिंग यू, एवरी सेकेंड दे आर वॉचिंग यू। आपके बोलने से कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं उनकी लाइफ में, बट द वे दे वॉच यू इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका बिहेवियर पैटर्न, आप कैसे बोल रहे हो, आप कैसे बिहेव कर रहे हो दूसरों के साथ, आप कितनी ऊंची आवाज में बोल रहे हो, ये चीज यस, दादा यस। मैं ये देखती ये हूँ कि हमारे हमारे टाइम में होता था। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती थी ना, तो उसको बोला जाता था कि किसी पागल को मत देखो, ऐसे वैसे आदमी को मत देखो, किसी Yes, किसी दादा। ऐसी वैसी जगह पे मत जाओ। क्या है, जो इमोशंस उसके माइंड में आते थे ना, हाँ, वो उसको बहुत इफेक्ट करते थे। और एग्जैक्टली। आजकल तो ये कोई मान ही नहीं रहा है। अब दादा माने नहीं माने तो, बट ये कहना जरूरी है कि बच्चों में जो इमोशंस आते हैं वो अंदर से ही आने चालू हो जाते हैं। हाँ, और मैं तो जैसे ये लाइव पुराणों में देखती हूँ, लिखा है। क्योंकि मुझे बोलते थे पुराणों में मेरे लिखा पेरेंट्स। है ना, अभिमन्यु अभिमन्यु अपनी माँ के पेट चक्रव्यूह। से सीख के आया है। एग्जैक्टली। आजकल के बच्चे आजकल के बच्चे ये मोबाइल व्हाट्सएप वगैरह वगैरह अपनी माँ के पेट से सीख के आते हैं, क्योंकि 9 महीना वो लेडी मोबाइल लेके ही बैठी रहती है। Right. Okay, so we have this wonderful first session on. If anybody wants to say anything, most welcome. आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, raise your hands, and you are most welcome on board. Meanwhile, देखते हैं दादा किसी ने कुछ कहना है तो. So we do not have any टॉपिक ही questions. टॉपिक ही इतना हार्ड है